Children, today we are going to start another exercise of this chapter, algebra. In exercise 11.1, we have learned how we can form the basic algebraic expressions by multiplying or adding any number or variable. Okay. Now in second exercise also we have learned that how we can frame some of the formulas by using the concept of algebra. Now before starting exercise 11.3, let me tell you one thing, that in algebra, as we know, there are constants and variables. Okay, constants are the numbers which are having a fixed value, and variables are the alphabets whose value can change from question to questions. Now, these constant and variable can be operated by using mathematical operations. Okay, like constant and variables can be added, subtracted, multiplied or divided. Anything can happen. For example, I am taking constant as 5 and variable as x. So it can be x plus 5, it can be x minus 5 or 5 minus x, anything. It can be 5x, it can be x upon 5. Okay, this is addition operation, subtraction operation, multiplication and division operation. In addition, we say that 5 is added to x. 5 add हो रहा है किसमें? x में. और 5 is subtracted from x. The product of 5 and x, or we can say x is multiplied to 5. And in this we can say x is divided by 5. So, with constant and variables, we can perform all these 4 basic operations. Now let's start exercise 11.3. First of all, we will start from first question. First question अगर हम लोग देखेंगे, question क्या है? Make up as many expressions with the numbers, no variable as you can, from 3 numbers 5, 7 and 8. ठीक है, 5, 7 और 8 को यूज करके हमें जितने एक्सप्रेशन बना सकते हैं उतने एक्सप्रेशन हमें बनाने हैं. एंड एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस. यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन. मतलब हमें इसमें डिवाइड तो यूज करना ही नहीं है, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन यूज करना है. इन 3 नंबर्स को यूज करना है और जितने भी एक्सप्रेशन बना सके हम उतने बनाने हैं. हिंट में आपको दे रखा है that 5 plus bracket 8 minus 7, 5 minus bracket 8 minus 7. See, in this everyone can have variety of answers. So I will form some of the expressions like 8 into 7. मैंने 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया है, then minus 5. Or I can do 8 into 5 minus 7. Both way we can do. Similarly, 8 plus 5 minus 7 और 8 plus 7 minus 5. ठीक है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं. और we can write 5 into 7 plus 8, और we can write 5 into 7 minus 8. बहुत कुछ लिख सकते हैं. ठीक है, और 5 plus 7 into 8, 7 plus 5 into 8. ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब मैंने कितने बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना दिए हैं. और मैं थोड़ा सा बना देती हूँ. 5 plus 8 minus 7, आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग. ओके, देन 5 minus 7 plus 8. यू कैन मेक एज मेनी एक्सप्रेशन एज यू वॉन्ट. किसी को भी आगे पीछे कर देंगे, इट विल बी चेंज. यू कैन मेक मेनी मोर एक्सप्रेशन. ठीक है, हमने इतने बना दिए हैं. नाउ वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली. अब अगर आप ए से लेकर जी तक के सारे पार्ट्स को ध्यान से देखेंगे, ए में क्या है? y plus 3. इट इज हैविंग वेरिएबल. वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली. बी में हमें सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं. नहीं, बी में भी हमें वेरिएबल z दिख गया है. सी में देर इज नो वेरिएबल. डी में नो वेरिएबल. सो इसका आंसर सी और डी हो जाएगा. इसके अलावा ई एफ जी तीनों में वेरिएबल है. सो द आंसर विल बी सी एंड डी आर द एक्सप्रेशंस with only numbers.
ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है. नाउ सिमिलरली वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस. 4 ही ऑपरेशन होते हैं मेन. बेसिक 4 ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड division. So few parts are given. We have to identify the operation in forming the following expression and tell how the expressions have been formed. See how they are formed. Either they are added or subtracted or multiplied or divided. So simply we have to classify the operation. Like A part की बात करूं, z plus 1, this is addition. Okay, and in this only z minus 1 is subtraction. Then y plus 17, again it's addition, and then y minus 17, again it's subtraction. Similarly B part आप लोग देखेंगे. B में 17y, this is multiplication. बहुत easily हम इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. Then y by 17 is division, और 17y भी मल्टीप्लीकेशन है, और इसके बाद जो 5z है दैट इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन. सी पार्ट में अगर आप देखेंगे 2y plus 17, इसमें 2 चीजें हैं. इसमें हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है. दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज एडिशन. सो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन. Similarly, if I will look at 2y minus 17, इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. If I will look at D part, 7m, only multiplication is there. Then minus 7m plus 3, तो इसमें क्या क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन. बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है हमें इसमें, बहुत इजीली हम सारे आंसर्स बता सकते हैं ओरली. देन minus 7m minus 3, इसमें मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, सो इन दिस वे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑल्सो. वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द ऑपरेशंस. ठीक है, नाउ सिमिलरली वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इन स्टेटमेंट फॉर्म. 2 चीजें होती हैं. दिस इज लाइक वन इज स्टेटमेंट फॉर्म एंड वन इज ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस. 7 एडेड टू p. ए पार्ट में क्या है, 7 लैंग्वेज को समझते हैं. 7 एडेड टू p. 7 ऐड हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा है, p में ऐड हो रहा है, तो p पहले आएगा. 7 एडेड टू p, 7 बाद में आया है. 7 ऐड हो रहा है किसमें, p में ऐड हो रहा है, तो मतलब p पहले से है. सिमिलरली फॉर b पार्ट, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p. p में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. देखिए फ्रॉम के बाद जो भी नंबर या वेरिएबल कुछ भी है दैट विल कम फर्स्ट. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट वॉट एवर इज गिवन आफ्टर फ्रॉम दैट विल कम इन फर्स्ट व्हेन वी आर राइटिंग द एक्सप्रेशन. देन सी पार्ट, p मल्टीप्लाइड बाय 7. अब देखिए p मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखा हो या 7 मल्टीप्लाइड बाय p लिखा हो, मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज नंबर्स कम फर्स्ट. देन d पार्ट, p डिवाइडेड बाय 7. p डिवाइड हो रहा है 7 से. लैंग्वेज को समझना है. अगर होता 7 डिवाइडेड बाय p, देन 7 विल कम इन न्यूमरेटर. देन फॉर e पार्ट, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, तो माइनस m पहले आएगा, then 7 is subtracted. Then for f part, minus p multiplied by 5. 5 into minus p है, ये क्या बन जाएगा, minus 5p. This minus will come to 5 and in first. Then g part, minus p divided by 5. h part, p multiplied by minus 5. Again it will be minus 5p. So in this way we have done till question number 4. Let's see next question. Now we will look at 5th question of this exercise. 5th question में क्या है, give expressions in the following cases. Now statement is given, we have to convert it in the form of expression. A part is
11 एडेड टू 2m, तो 2m पहले आएगा क्योंकि 11 जाकर ऐड हो रहा है किसमें, 2m में. फॉर बी पार्ट इट इज 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m. 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, 2m में से. 2m विल कम नेक्स्ट. देन फॉर सी पार्ट 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड. अब देखिए 5 टाइम्स y, इसमें क्या ऐड हो रहा है, 3 इज एडेड. सो दिस विल बी इक्वल टू 5y प्लस 3. देन फॉर आवर डी पार्ट 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड. 5 टाइम्स y है, इसमें से 3 माइनस हो रहा है. सो 5y माइनस 3. लैंग्वेज को समझना है बस हमें. y is multiplied by minus 8. That will be minus 8y. Then for f part, y is multiplied by minus 8 and then 5 is added to the result. इसी में 5 add हो रहा है. Then g part, y is multiplied by 5 and result is subtracted from 16. जो भी 16, जो भी 5 और y को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से, 16 में से. सो 16 माइनस 5y फ्रॉम 16 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. देन y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16. 16 में रिजल्ट को ऐड हो रहा है किसका रिजल्ट, 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 का. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है एडेड 2 है तो 11 पहले लिख दिया 2m बाद में लिख दिया. दैट विल बी रॉन्ग. 11 एडेड टू दिस, तो 11 जाकर ऐड हो रहा है. ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखा है, y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 कर दिया हमने, कितना आएगा माइनस 5y. एंड द रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज एडेड टू 16. 16 में ऐड कर रहे हैं. ठीक है, अगर बोलते हैं 16 एडेड टू, 16 को एडेड टू करते तो 16 बाद में आता. तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है. ऐसे जब आप और स्टेटमेंट पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा. नाउ सिमिलरली वी विल लुक एट सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल. फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग t एंड 4. t और 4 को यूज करके हमें एक्सप्रेशन बनाना है. यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन. एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट. देखो सब में t होना चाहिए. एक ऑपरेशन को एक ही बार यूज करना है. तो ए पार्ट में क्या क्या हो सकता है, देखो t प्लस 4 हो सकता है, t माइनस 4 हो सकता है, या फिर 4 माइनस टी हो सकता है. मैं t प्लस करूं 4 करूं या 4 प्लस टी करूं, बोथ इज सेम. बट t माइनस 4 एंड 4, देन ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का. देन मल्टीप्लाई, इन मल्टीप्लाई ऑल्सो 4 इंटू टी, t इंटू 4 इज सेम. डिवाइड में करें अगर हम, t अपॉन 4 अलग है एंड 4 बाई टी इज डिफरेंट. सिमिलरली फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y, 2 एंड 7. बी पार्ट में है, y का यूज करना है, 2 का यूज करना है, 7 का यूज करना है. एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट. यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस. 2 नंबर्स के बीच में बस ऑपरेशन लगाने हैं. सो सी इट कैन बी 2y प्लस 7 या फिर 2y माइनस 7, और इट कैन बी 7y प्लस 2, 7y माइनस 2. ओके, तो इस तरीके से हमारे 2 हो गए. इसको डिवाइड वाले ऑपरेशंस नहीं बना रहे हम लोग. चाहे तो आप बना सकते हैं ऐसे, y बाई 2 प्लस 7 और 2 बाय y प्लस 7. ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो हैव y बाय 7 प्लस 2 और 7 बाय y प्लस 2. कई एक्सप्रेशन हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे, अभी हमने बस इतने ही बनाए हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेमिंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट से हम लोग एक्सप्रेशन बनाना सीखा है हमने. एक्सप्रेशन बाय यूजिंग ऑल द 4 ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो दिस मच वी कैन कंप्लीट ऑन टुडेज डेट. द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन.